اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ سنت والجماعت متکلم اسلام جناب حضرت اقدس مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم سے کراتے ہیں، جو دیوبند سے چل کر تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت والا کی خدمت عالیہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ مصفہ فرمائیں، اس شعر کے ساتھ کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و رسائی کا انہیں ہے انتظار۔ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت اور مائیں اور بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مدرسہ الیاسیہ دعوت الایمان کے اس اجلاس سالانہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ سالہ سال پہ چل رہا ہے اور دن بدن الحمدللہ مدرسہ ترقی پر ہے۔ ابھی آپ نے مدرسے کے بچوں کی تقریریں سنی، بچوں نے ماشاءاللہ اسی اچھی تقریریں کی ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، قرأتیں پڑھی ہیں اور اپنی صلاحیتوں اور استعداد کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو ہر درجہ قبولیت سے نوازے۔ اور مدرسے کے محتمم مولانا تنویر صاحب جو ماشاءاللہ ایک بہت متحرک اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے عالم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مختلف محلوں سے، اطراف کے دیہات سے آتے ہیں اور جب مدرسے میں آتے ہیں ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی معلومات نہیں ہوتی، بالکل اناڑی سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم گاؤں سے آیا، دیہات سے آیا، استاد صاحب نے کہا دسترخوان بچھا کے کھا لو، تو اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ دسترخوان کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ دسترخوان بچھا کے خود اس پر بیٹھ گیا اور پلیٹ نیچے رکھ کے کھانا شروع کر دیا، اتنا بھی نہیں معلوم۔ لیکن ماشاءاللہ مدرسے میں جب آتے ہیں بہترین تقریریں کرنے لگتے ہیں، بہترین قرأتیں کرتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں، ان بچوں کے باپ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے باپ اگر مدرسے میں نہیں آئے، مدرسے میں داخل نہیں ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر اگر کھڑا کر دیجیے ان کے پیر ہل جائیں گے، نہیں بول سکتے۔ اور بچہ بے جھجک بول رہا، بے دھڑک بول رہا، بے تکلف بول رہا۔ یہ اس بچے کے اندر یہ جوہر کس نے پیدا کر دیا، یہ صلاحیت کس نے پیدا کر دیا؟ الحمدللہ یہی ان مدارس کا کارنامہ ہے۔ ان مدارس نے اور مدارس کے اساتذہ نے ان بچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کو خوب سے خوب ترقیات سے نوازے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ان مدرسوں کو باقی رکھے۔ اور یاد رکھو دوستو، جب تک یہ مدرسے رہیں گے انشاءاللہ دین باقی رہے گا۔
جب تک یہ مدرسے رہیں گے دین باقی رہے گا. اور یہ بھی بتا دوں یہ مدرسے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ. انشاءاللہ دین بھی باقی رہے گا. کب تک؟ قیامت تک انشاءاللہ دین باقی رہے گا. جو ہے ان مدرسوں کے چراغ کو انشاءاللہ کوئی بجھا نہیں سکتا. بھی دیکھیے نا لاک ڈاؤن لگا تھا, آپ 2-4 آدمی بھی نہیں اکٹھا ہو سکتے تھے. مسجد میں جانا دشوار تھا. مسجد کی چٹائیاں اور مسلے دیکھے وہ کئی دن ہو گئے نصیب نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ماشاءاللہ جلسہ ہو رہا ہے. یہاں جلسہ ہو رہا اور جو ہے صبح سے ہو رہا. بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں اور لانے والے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کا کام رکنے والا نہیں ہے. یہ جو جماعتیں رکی ہوئی تھی ماشاءاللہ جتنا رکی ہوئی تھی اتنا پھر چالو اتنے پھر چالو ہو گئی ہے. اب مسجدیں بھرنے لگی ہیں اور ہر طرف جو ہے چلت پھرت شروع ہو گئی ہے. اسی طرح سے دین کا ہر کام, مدرسوں کا, مسجدوں کا, جماعت کا, جمعیت علماء کا, دین کا ہر کام انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آیت میں نے پڑھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ اسی آیت کے اترنے کے بعد دین کی تبلیغ شروع ہوئی. اس سے کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے. غار حرا میں وہی اتر چکی تھی. جبریل آ چکے تھے اور اقرا کی کچھ آیتیں آپ پر اتر چکی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیغام کے امین بن چکے تھے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کا, عام دعوت کا آپ کو حکم نہیں دیا تھا. کیوں؟ ابھی نئے اللہ تعالیٰ کے رسول کو نئی نئی دین کی ذمہ داری دی گئی تھی. نئی نئی وحی اتری تھی. اتنا بوجھ تھا وحی کا, اتنا بوجھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں بچوں گا نہیں. اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی کہ میں بچوں گا نہیں. اور گھر جاتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑاؤ, میں بچوں گا نہیں. مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. تو اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں تک آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا. عام تبلیغ کا, انفرادی تبلیغ کرتے تھے. چنانچہ حضرت بکر صدیق مسلمان ہو چکے تھے, حضرت جو ہے خدیجہ مسلمان ہو چکی تھی. اسی طرح سے حضرت زید اور جو ہے زید بن حارثہ, حضرت بلال, چند لوگ مسلمان ہو چکے تھے. لیکن عام دعوت کا حکم نہیں تھا, عام تبلیغ دین کا حکم نہیں تھا. جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے قریبی لوگوں کو, رشتہ داروں کو, قریب کے رہنے والوں کو ڈرائیے, اللہ کا پیغام پہنچائیے, اللہ کے دین کی بات ان تک پہنچائیے. جب یہ آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چلے گئے. بہت بڑا پہاڑ تھا مکے میں کوہ صفا. آج تو اس پہاڑ کا صفا ہو چکا ہے, بہت کم رہ گیا ہے اور مختصر رہ گیا ہے. اس زمانے میں بہت بڑا تھا, ادھر آدمی کھڑا ہو تو ادھر کی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور وہیں سے اعلان کیا اے لوگوں آؤ میرے پاس, سب لوگ میرے پاس آؤ. بتائیے کوہ صفا ایک طرف اور مکے کا شہر دور تک ہے. وہاں کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی اور سارے شہر میں آپ کی آواز پہنچ گئی. سارے شہر میں اللہ نے, یہ آپ کا معجزہ ہے. جس طرح سے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کے تقریر کی تھی اور 1,00,000 کا مجمع تھا. دیکھیے یہاں اتنا مجمع ہے اور 2 مائک لگے ہوئے, 2 یہ لگے ہوئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 کے مجمع میں تقریر کی تھی. اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے خطاب دیا تھا, خطبہ دیا تھا. اس لیے کہ کوئی اور اونچی چیز مظاہر نہیں تھی جس سے ہر طرف کے لوگ دیکھ لیں اور ہر طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے دور دور تک. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کے خطبے کی آواز جتنی دور تک پہنچتی تھی اتنی ہی قریب تک پہنچتی. قریب تک جتنے قریب والے جتنا سنتے تھے اتنا ہی دور والے بھی سنتے تھے. ہر ایک کے کان میں آواز برابر جاتا. اس کو بجز معجزے کے کچھ نہیں کہا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی
पूरा शहर मक्के का आ गया, आपकी एक आवाज पर सब इकट्ठा हो गए। क्यों? सब आपकी अजमत को मानते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, आपकी बड़ाई को सब तस्लीम करते थे, सब आ गए। जब सब इकट्ठा हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, हम आपकी बात मानेंगे। आज तक हमने आप पर झूठ का कोई तजर्बा नहीं किया, आपको हमने झूठा नहीं पाया, हम आपकी बात मानेंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेरी बात मान रहे हो तो ये भी मानो कि तुमको मैं मरने के बाद सख्त अजाब से डराता हूँ। अगर तुमने अल्लाह ताला की पर ईमान को कबूल नहीं किया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, रिसालत पर ईमान नहीं लाए, मेरी बात नहीं माने, आखिरत से नहीं डरे, तो मैं डायरे महशर में सख्त अजाब होगा, अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब होगा, उस अजाब से मैं तुमको डराने के लिए आया। अभी तक जब आप दुनिया की बात कर रहे थे, सब के सब जो है आपकी बात मान रहे थे, हाँ कर रहे थे, और कह रहे थे आप झूठे नहीं, आप सच्चे हैं, हम आपकी बात मानते हैं। जब दीन की बात शुरू कर दी तो सारे के सारे मुखालिफ हो गए, सब के सब मुखालिफ हो गए। आज भी यही होता है, जब तक दुनिया की बात कीजिए, रंगीनी की बात कीजिए, खेल तमाशे की बात कीजिए, दुनिया के कमाई धमाई तिजारत की बात और से सुनेंगे, जहाँ आखिरत की बात शुरू किया तो उठना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरत की बात शुरू की, अल्लाह की बात शुरू की, जहन्नम की बात शुरू की, आखिरत की बात शुरू की, तो सबके सब मुखालिफ हो गए। सबसे ज्यादा मुखालिफ आपका सगा चचा अबू लहब बन गया। उसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब्बल लक साइर अल-यौम, ऐ मोहम्मद तेरा दिन भर नाश हो, अलिहादा जमातना, क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया था, इसीलिए यहाँ इकट्ठा किया था? सब के सब मुखालिफ हो गए, बुरा भला कहने लगे, मुंह पर हुजूर को बुरा भला कहने लगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तहम्मुल, इतनी बर्दाश्त की कुव्वत नसीब फरमाई थी कि आपने अपने किसी मुखालिफ को कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं जवाब दिया। आपको कायनात में सबसे ज्यादा सताया गया, लेकिन किसी सताने वाले का आपने कोई जवाब नहीं दिया। हदीस में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्सी क़त्तु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं। हमारा ये हाल है, बर्दाश्त की कुव्वत नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। कोई कुछ कह दे, अगर एक कह दे तो दो सुने, लेकिन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने एक साहब से कहा नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा नमाज पढ़ने का तरीका नहीं, मुझे नमाज पढ़नी सीखी नहीं है, मुझे नमाज का तरीका मालूम नहीं है। मौलाना ने कहा जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। चुनांचे वजू करके खड़े हो गए। अब वो मौलाना की बगल में खड़े हुए, इत्तेफाक ऐसा कि मौलाना को खारिश हुई तो एक कुहनी हिल गई और उसको थोड़ी सी लग गई। उसने कहा, मौलाना ने कहा जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम भी करो। तो उसने मौलाना को जोर से तो नहीं मारा, और देहाती तक गाँव में तो जोर से मार दूं। अब मौलाना को तय है कि मैं इसे नमाज का तरीका सिखा रहा हूँ और ये मुझे कोहनी मार रहा है, उन्होंने और जोर से मार दिया। अब उसने सोचा कि हजरत ने तो फरमाया जैसे जैसे करूँ, हजरत को फिर मारा। यहाँ तक कि दोनों कुश्ती लड़ने लगे और जो है एक ने दूसरे को पछाड़ दिया। काफी देर तक लड़ते रहे, लोगों ने आकर छुड़ाया, जब जाकर इन्होंने नमाज का सलाम दिया। ये नमाज ही मतलब होता है। तो देख रहे हैं वो आलिम है लेकिन तहम्मुल नहीं, थोड़ी सी किहुनी लग गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी कुव्वत बर्दाश्त। याद रखो, अगर आपका दुश्मन आपकी मुखालफत करता, कोई आपको बुरा भला कहता है, कोई आपके साथ नाजेबा सलूक करता है, और आप अगर बर्दाश्त कर ले, आप अगर तहम्मुल कर ले और उसकी बात का जवाब न दें, मैं आपसे बताता हूँ अपनी जात के लिए तो बर्दाश्त करना चाहिए। दीन का मसला हो तो बर्दाश्त, दोनों चीजें अलग अलग है। अपनी जात के लिए बर्दाश्त करना चाहिए। चुनांचे
एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक जी थे। चलते चलते एक हजरत अबू बकर सिद्दीक का दुश्मन आ गया, उसने सिद्दीक अकबर को गालियां देना, सामने तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हुजूर बगल में है और सिद्दीक अकबर को शख्स गाली दे रहा है और सिद्दीक अकबर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत की मजबूरियां, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत की मजबूरियां, जख्म सहते रहे, मुस्कुराते रहे। वो गाली दे रहा, सिद्दीक अकबर जब काफी देर हो गई, 15-20 मिनट गुजर गए और हुजूर क्या कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं, सिद्दीक अकबर की तरफ देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ गई और उसने हद कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 2-3 बातों का जवाब दे दिया। तुम ये कहते हो, क्यों कहते हो? 2-3 बातों का जवाब दे दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्कुरा रहे थे, सिद्दीक अकबर को देखे जा रहे थे, हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, अपना चेहरा फेर लिया, मुस्कुराना बंद कर दिया। सिद्दीक अकबर को एहसास हुआ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, वो मुझे गालियां देता रहा और मैं बर्दाश्त करता रहा और आप मुझे देख देख के मुस्कुराते रहे, खुश होते रहे, लेकिन मैंने जवाब दे दिया तो आपने अपना चेहरा मुझसे फेर लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जब तुम बर्दाश्त कर रहे थे, तहम्मुल कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, तो अल्लाह की तरफ से रहमत का एक फरिश्ता आकर तेरी तरफ से जवाब दे रहा है। जब फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा था तेरे साथ बैठकर, तो मैं उस फरिश्ते को देख देख के मुस्कुरा रहा था। मेरे सिद्दीक अकबर का जवाब देने के लिए फरिश्ता आया हुआ है। अब जब तुमने खुद जवाब देना शुरू कर दिया, वो फरिश्ता चला गया, वो अल्लाह के यहाँ वापस चला गया। अब तेरा साथ नहीं दे रहा, तेरी मुदाफत नहीं कर रहा, तेरे पास नहीं कर रहा, तो मैंने तेरी तरफ चेहरा करना भी बंद कर दिया, मैं तो फरिश्ते को देख रहा। तो देखो दोस्तों, अगर आज भी आप बर्दाश्त करें, तहम्मुल करें, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ से इंतकाम लेते, अल्लाह आपकी तरफ से बदला दे। चुनांचे अबू लहब ने हुजूर को कहा, तब्बल लका साइर अल-यौम, पूरा दिन तेरा नाश हो, पूरी जिंदगी तेरा नाश हो, क्यों तुमने हमको धोखा दिया, क्यों यहाँ बुलाया? इसीलिए बुलाया था, लिहाजा जमातना, इसीलिए तुमने बुलाया। दोस्तों, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, उफ तक नहीं किया, लेकिन जानते हैं हुजूर की खामोशी का सिरा देखिए, अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। अल्लाह ताला ने जो अबू लहब ने कहा था उसका जवाब हुजूर ने नहीं दिया, अल्लाह ताला ने दे दिया और कुरान की पूरी सूरह उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बत। अबू लहब का पूरा वजूद बर्बाद हो जाए, उसके दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, और बर्बाद हो गया इसलिए कि बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ, तो मुझे दुआ देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उस काम को कर देना है। चुनांचे मैंने कर दिया और अबू लहब बर्बाद हो गया। दोस्तों, अबू लहब की बर्बादी की सबसे बड़ी दलील यही है कि उससे सख्त आयत कुरान में किसी और के बारे में नहीं उतरी जितनी किसके बारे में उतरी, अबू लहब के बारे में। और अबू लहब को हुआ क्या, मक्के ही में था और उसको कोरोना हो गया, खतरनाक किस्म की बीमारी हो गई, और इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी, पूरा जिस्म सड़ गया उसका, पूरे जिस्म पर गंदगी फैल गई, और जब मरा तो उसकी लाश को कोई ले जाना वाला मौजूद नहीं था, उसकी लाश को उठाने वाला, उसके बेटों ने लाश को घसीट कर ले जाकर एक गड्ढे में डाल दिया, कफन दफन भी नहीं। कहते हैं घरों से खींच के लाशों पे लाशें डाले हैं, न गोर है, न कफन है, न रोने वाले हैं। तो बहरहाल पहली आयत में उतरी है, वह अंदिर असीरत कलकदीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। तो दोस्तों, आज भी हमको सबसे पहले दीन की बात अपने घर के लोगों को बतानी, अपने बेटे को नमाजी बनाना है, अपनी बीवी को नमाजी बनाना है, अपने बेटे को कुरान पढ़ने वाला, अपनी बीवी को कुरान पढ़ने वाला, और उसके बाद फिर मोहल्ले के लोग, फिर शहर के लोग। हमारे में से आदमी उठता है और दीन को फैलाने के लिए अमेरिका तक चला जाता है और अपने मोहल्ले और अपने घर की खबर नहीं होती। चुनांचे कहा है, सारे जहां पर है नजर अपने जहां से बेखबर, सारे जहां पर है नजर अपने जहां से बेखबर। इसके बाद आयत, दूसरी आयत है, वक़्फ़िज़ जनाहक लिल-मुमिनीन, नाच पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी आपकी तबलीग के बाद, आपकी दावत के बाद, आपके अहकाम इलाही पहुंचाने के बाद
जो लोग मुसलमान हो जाएं, आप पर ईमान लाएं और आपकी दावत को कबूल करें, आप अपने पहलू को उनके लिए नर्म रखिए, अपने पहलू को उनके लिए नर्म रखिए, उनके साथ अच्छे अखलाक का मामला कीजिए। दोस्तों, ये अल्लाह का हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मुसलमानों के लिए, अपने जात पर ईमान लाने वालों के लिए अपने पहलू को नर्म कीजिए, अपने अखलाक अच्छे रखिए। चुनांचे खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए दुनिया में भेजा गया ताकि मैं अखलाक की अज़मतों को पूरा कर दूं और अखलाक को बुलंद कर दूं, इसीलिए मुझे दुनिया में भेजा गया। अब मैं चंद बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी चलेगा जी चल रहा है, अभी चल रहा है। मोबाइल का छह बजे तक जलसा चलेगा। 5 सोना अफान आ रहे हैं, जी आली बस उनको बुला लो सामने, तुम्हें पता है। आप कर लें अपना और माशाअल्लाह आप हजरात इस मदरसे के इस अजीमुशान इजलास में शरीक हैं और मैं समझ रहा हूँ कि ये पूरे मवाना में सबसे पहले जलसा हो रहा है। इससे पहले कहीं हुआ अभी नहीं हुआ इलाके में कहीं नहीं हुआ। ये मौलाना तनवीर साहब की जमा मर्दी की बात है और इस मदरसे के माशाअल्लाह जब काम होता है तो उसका इजहार होता है। इस लॉकडाउन में भी माशाअल्लाह मदरसे में तालीम का सिलसिला अच्छी तरह जारी रहा और बच्चे आलिम हाफिज होते रहे, कारी होते रहे, दीन की बातें होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस अपनी खिदमत से गाफिल नहीं है। आज भी अगर मुल्क में इस वक्त अगर 70,000 हाफिज होंगे, कितने होंगे? 70, तो आइंदा साल इंशाअल्लाह 80 होंगे, इससे कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह, 80 से कम नहीं होंगे। इसी तरह से अगर मुल्क में 60,000 आलिम हैं, 70,000 आलिम हैं, तो आइंदा साल इजाफा ही होता रहेगा, 80,000 85,000 हो जाएंगे इंशाअल्लाह, उससे कम नहीं होंगे और ये दीन का सिलसिला जारी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और करम है कि जब दीन की निस्बत से बेदारी होती है, दीन की निस्बत से उठा जाता है, अल्लाह के दीन की फिक्र लेकर मुसलमान उठते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उनके उठे हुए कदमों की लाज रखेगा, लाज रखता है। आप देखिए अंग्रेजों के दौर में ये कैफियत हो गई थी कि बरतानिया के पार्लियामेंट में ये तजवीज मंजूर हो गई थी कि हिंदुस्तान से इस्लाम को खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म, तजवीज मंजूर हो गई थी अंग्रेजों ने। आज कानून बनते हैं तरह तरह, बड़ी मजबूत हुकूमत थी और ये तजवीज मंजूर हो गई थी कि इस्लाम को खत्म कर देना है। और क्या करूं? ये भी कहा था वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने कि इस्लाम के खत्म करने के लिए जरूरी है कि कुरान को खत्म किया जाए, कुरान को खत्म किया जाए। कुरान को कैसे खत्म किया जाए? सोचते सोचते उनके जहन में आया तो कुरान को जला दिया जाए। जितने नुस्खे मिले जला दिया। उस जमाने में छापने का सिलसिला बहुत महदूद था, ज्यादा छपाई नहीं होती थी, हाथ से कुरान करीम लिखा जाता था। तो उन्होंने सोचा हम इसको छपा दें, कुरान को जो खत्म कर देंगे, जला देंगे तो कुरान खत्म हो जाएगा।
जब कुरान खत्म हो जाएगा मुसलमानों के अंदर से रूह जिहाद खत्म हो जाएगी, और जब रूह जिहाद खत्म हो जाएगी तो मुसलमानों को और इस्लाम को बर्बाद कर देना बिल्कुल आसान है। चुनांचे पुलिस वाले घरों में मस्जिदों में छापे मार मार के और हमला कर करके घरों से मस्जिदों से कुरान को इकट्ठा करते थे और जला देते थे, आग लगा देते थे। देवबंद के करीब एक जगह है पानीपत, हरियाणा में अब है, वहां उस जमाने में एक कैफियत थी कि हर घर का हर बच्चा हाफिज। अगर घर में 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 तो हाफिज, और माशाल्लाह औरतें भी बच्चे भी सब हाफिज। वहां जो अंग्रेज अफसर कुरान जलाने के लिए मुतय्यन था, एक मुसलमान जमींदार ने उसकी दावत की, उस अंग्रेज अफसर की जो कुरान जलाने का जिम्मेदार बनाया गया। जब दावत की वो आ गया, दावत जब खा लिया तो उस जमींदार ने कहा हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम उसको अपनी मजहबी किताब कुरान सुनाते हैं, आप सुनेंगे कुरान? तो वो अंग्रेज अफसर अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहता हाँ हम सुनेगा, हाँ हम सुनेगा। उसने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को 20-25 बच्चों को इकट्ठा कर दिया, कहा ये सब हाफिज़ कुरान है, जिससे चाहो सुनो। अब उसने एक बच्चे से कहा 20 में 12 पढ़ो, उसने बिस्मिल्लाह का फरफा पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों जब कुरान याद होता है तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बहुत लुत्फ आता है, तबीयत रुकती ही नहीं है, पढ़ता ही चला जाए। हम अपने बचपन में जौनपुर में हिफ्ज़ पढ़ते थे तो वहाँ एक हाफिज रेल थे, रेल की तरह पढ़ते थे, उनके शागिर्द थे हाफिज इंजन, वो इंजन की तरह पढ़ते थे। और वहाँ एक नाबीना हाफिज थे हमारे बचपन में, हमारी भी उनसे मुलाकात है। हाफिज जुनैद नाम था, नाबीना थे, और सबीने में जब खड़े हो जाते एक रकात में पूरा कुरान खत्म कर देते, एक रकात नाबीना थे, एक रकात में पूरा कुरान झूमते रहते थे, पढ़ते रहते थे। बस चूंकि नाबीना थे, नजर नहीं आता था, तो झूमते उनका चेहरा मुक्तदियों की तरफ हो जाता, फिर लोग उनको सही करते थे। बहरहाल जब कुरान याद होता है तो इतना लुत्फ आता है, इतना मजा आता है। चुनांचे उस बच्चे ने फर पढ़ना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज सुन रहा, बच्चा पढ़ता चला जा रहा है, सोच रहा इसी कुरान को जलाने के लिए मुझे मुतय्यन किया और मेरे सामने पढ़ा जा रहा, मेरे सामने अपना रोब गांठने के लिए इस बच्चे से कहा, कि जो है गलत पढ़ रहा है। बच्चे से कहा गलत, बच्चा कहता चचा सही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बेझिझक कहता है। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, चचा सही पढ़ा, तीसरा बच्चा चचा सही पढ़ रहा है, चौथा बच्चा, सारे बच्चे बोल पड़े, चचा की हालत खराब हो गई। उसने कहा हम कुरान के नुस्खों को तो जला सकते हैं, लेकिन इन मासूम सीनों से कुरान को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? चुनांचे उसी दिन से वो तजवीज खत्म हो गई और कुरान का जलाना बंद कर दिया। दोस्तों उधर अंग्रेजों का प्लान था इस्लाम मिटा दो, और माशाअल्लाह इधर अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे रातों में उठ कर अल्लाह के हुजूर रोते थे, तहज्जुद में गर्म आंसू बहाते थे कि बारह हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत की कोई सबील पैदा हो। उधर बादशाहों का प्लान है, इधर फकीरों की कोशिश है, और इन फकीरों ने इकट्ठा होकर देवबंद की सरजमीन में, जिस देवबंद को कोई जानता भी नहीं था, मेन लाइन पर भी नहीं, और बिल्कुल अलग थलग एक कस्बा था, वहां इन हजरात ने इकट्ठा होकर अल्लाह के नाम पर एक मदरसे की बुनियाद रखी है। और फिर वो मदरसा चलता रहा। मुहर्रम के महीने में मदरसा कायम हुआ था, और मुहर्रम, सफर, रमजान, शाबान आते आते दौरे तक की तालीम हो गई। दौरे एक तालीम से शुरू हुआ था, दौरे तक की तालीम हो गई। जब तलबा बहुत ज्यादा हो गए तो ये तय हुआ कि मदरसे के लिए कोई अलग से इमारत होनी चाहिए, तामीर होनी चाहिए। चुनांचे ऐलान हुआ कि जुमे के दिन फला तारीख को हजरत मौलाना कासिम नानवी का वाज होगा, और वाज के बाद मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। ये ऐलान जब हुआ, उस जमाने के जितने औलिया अल्लाह थे, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हर जगह से देवबंद में इकट्ठा हो गए, और सब ने रो कर अल्लाह से दुआ किया। पहली ईंट रखी उस मदरसे की देवबंद के सैयद मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनके बारे में हजरत नानोतवी फरमाते हैं
गुनाह करना तो दूर की बात है, उनके दिल में गुनाह का ख्याल भी नहीं गुजरता है, पहली ही उन्होंने रखी। दूसरी शारह बुखारी मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने रखी। तीसरी मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने रखी, जो असल मीरे कारवां है, जो असल वाली हुजूर खड़े हैं, आजिज़ी और इंकिसारी का नमूना है। वो अपने को इस लायक नहीं समझ रहे कि मैं बुनियाद रखूं। लोगों ने कहा सर आप भी तो कोई ईंट रख दीजिए। चुनांचे लोगों के शदीद इसरार पर चौथी ईंट मौलाना कासिम नानोतवी ने रखी। और फिर इन हजरात ने रो रो कर दुआ किया, ऐ अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा ले, तेरे बंदे जो कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, अब आगे तेरी कुदरत है इस मदरसे को चाहे जितना नवाजें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजों की साजिश धरी की धरी रह गई। वो हमारा दीन क्या मिटाते, उन्हीं का दीन मिट गया। वो हमें यहाँ क्या रहते, यहाँ से क्या रुखसत करते, वो खुद रुखसत हो गए। उस मदरसे ने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन पैदा कर दिया। उस मदरसे ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पैदा कर दिया, जिन्होंने कान पकड़ कर अंग्रेजों को बाहर कर दिया, कान पकड़ कर अंग्रेजों को बाहर कर दिया। हजरत मदनी ने फतवा दिया था अंग्रेजों की मुखालफत में कि किसी मुसलमान के लिए अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजों ने हजरत मदनी के इस फतवे को बगावत पर महमूद किया और देवबंद से गिरफ्तार करके हजरत को कराची ले जाया गया और वहां बहुत जबरदस्त मुकदमा चला। मुकदमा कराची इतनी बड़ी किताबों में लिखी हुई चला। उस अदालत में हजरत मदनी से कहा गया आपने हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया है। तो हजरत मदनी ने कहा जी दिया है और आइंदे भी दूंगा। अगर बरतानिया का वायसरा हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाने आएगा तो इस्लाम की हिफाजत में जो गर्दनें कटेंगी उसमें पहली गर्दन हुसैन अहमद की होगी। दोस्तों ये जुर्रत थी, ये कारनामे थे। इन्हीं मदरसों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामे अंजाम दिए और आइंदा भी ये मदरसे ही इंशाअल्लाह कारनामे अंजाम देंगे। इन्हीं की वजह से ये मस्जिदें हैं, इन्हीं की वजह से ये मस्जिदों में मेहराब और मिंबर हैं, ये हाफिज हैं, ये कारी हैं, ये आलिम है, ये मुफ्ती हैं। सिर्फ एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद हर साल 50 मुफ्ती बनाता है। कितने? 50 मुफ्ती और 1800 आलिम पैदा करता है। और जो आलिम जहां भी चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत अंजाम देता। यही मदरसा मौलवी तनवीर साहब देवबंद से आए और माशाअल्लाह बाहर आगे की नहीं आगे। इसी तरह जहाँ भी देखिए चप्पे में एक कैफियत है। अल्लाह तबारक तआला इन मदारिस को खूब तरक्कियात से नवाजे और शुरू और फितन से आफतों से बलाओं से मदारिस की हिफाजत फरमाए। और मैं उन तलबा को दिल की गहराई से मुबारकबादी देता हूँ जिन तलबा ने अच्छी तकरीरें पेश की, खैरातें पेश की, अपनी तालीम और तरबियत का बेहतरीन नमूना पेश किया। अल्लाह ताला उन तलबा की सलाहियतों को और इस मदरसे की खिदमत को और इसके कारनामे को अल्लाह तबारक तआला शर्फ कबूलियत से नवाजे। आमीन। और माशाअल्लाह मदरसे के पास अच्छी खासी जमीन हो गई है, लेकिन अभी जितनी जमीन चाहिए उतनी नहीं हुई है और जितनी तामीर चाहिए उतनी नहीं हुई। बताइए सलाहियतें इतनी अच्छी तकरीरें और कमरा यही सामने जो मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को बेहतरीन जमीन से भी सरफराज फरमाए ज्यादा और साथ साथ इतने कमरे हो जाएं कि मेहमानान रसूल सहूलत और आफियत के साथ इसमें पढ़ सकें और ये दरो दीवार क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाओं से गूंजती रहे। अल्लाह तबारक तआला मेरी से हकीर तमन्ना को कबूल फरमाए और आप हजरात से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात मदरसे की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएं। इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो आपके लिए यहाँ भी और मैदान माशर में भी आपकी इज्जत और खुशबूई का दरिया बनेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।